गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर टू व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे सेल और सेल थ्योरी के बारे में। मैं आपका समाचार फिर से लेके आया हूँ सेल और सेल थ्योरी के एक नया सेशन, जो कि 9वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर की इस बात की शुरू करते हैं पहले सेल से। सो बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified when I am giving a new video or upload a new video. Okay, so without delay, let's get started. So first of all, you should know that what is cell. So cell is the basic structural and functional unit of living human being. Okay, all the living human beings are made up of the cells. So cells is the fundamental structural and functional unit of every living body. Okay, so in the next thing is that, so here is written as the cell is this basic structural and functional unit of living organism. It is the smallest unit of life and it can replicate independently. So सेल क्या है? सेल सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का, और ये क्या कर सकता है और अपनी तरह एक और एक क्रिएट कर सकता है। ओके, रिप्लिकेट कर सकता है, इसको डबल कर सकता है। ओके, अपनी तरह से अपनी तरीके का एक और ऑर्गेनिज्म को वो डेवलप कर सकता है। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी. इट इज अ जनरल आइडिया अबाउट द सेल. The cell varies from the individual single cell organism, that is the bacteria, to the multicellular organism, that is the tissue and organs and organisms level. So cell वेरी करता है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का हो सकता है जो कि यूनिसेलुलर कहते हैं हम, और एक ऑर्गेनिज्म हमारा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, बहुकोषीय सेल भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. पहले जो सेल का डिस्कवर हुआ था, कब हुआ था? सन 1665 में हुआ था। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का डिस्कवरी हुआ था. द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड अप थ्रू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप. सो जो सेल का इन्वेंशन हुआ उसके साथ माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन हो गया. कैसे ना, जो सेल को हम देखना चाहते थे वो बहुत मैग्नीफाइज इमेज देखना चाहते थे, सो इसलिए माइक्रोस्कोप का हम ज़रूरत पड़ा. ओके, तो ही इज द फर्स्ट ऑब्जर्व सेल. ओके, इन द थिन स्लाइड ऑफ द बॉटल कॉर्क. ओके, सो द रॉबर्ट हुक ने किया क्या, वो पहले ही वो जो सेल को ऑब्जर्व किया था, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व दिस सेल इन द स्लाइस ऑफ द बॉटल कॉर्क. ओके, so who discovered many teeny pores, he called that cells. It comes from the Latin word cella. Okay, though the cell is the term given by the Robert Hooke, and it is also come from an Latin word also. Okay, that Latin word is cella. He described the cell as a teeny boxes or honeycombs. Okay, so the Robert Hooke ने क्या यहाँ पर बताया है, जो कि सेल है बहुत ही छोटा छोटा बॉक्स है, जैसे जैसे कि हम बोल सकते हैं हनीकॉम्ब में. ओके, हम छोटे छोटे सेल देखते हैं. ओके, लाइक दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज द काइंड्स ऑफ सेल्स. He thought that these cells only exist in plants and fungi. As he saw the cells in the as the in the cells of the plants, so he discovered that, or he thought that the cells only existed in the plants and fungi only. Okay, but after that his assumption was wrong. Okay, because the animal body also carries the cells. Okay, so how, this is the diagram how he sees the pictures of the cells in that time. Okay, in the very low quality microscope. Okay, so after that the Anton van Leeuwenhoek in 1673 used the handmade microscope to observe the pond scum and discovered the single cell organism. He called them animalcule. Okay, so after the Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek also discovered the single cell organism. He also sees the animal cell also, animal body also carries the cells. Okay, he also observed the blood cell from fish, birds, frogs, dogs, and human. All are having the cells. All the animals having the different kinds of cell, but he first observed the blood cell in the different organism. Okay, who observed that? It is the Anton van Leeuwenhoek. So between the Hooke
and Leeuwenhoek the discovery and discovery was accepted. Okay, so this is probably due to the widespread and traditional belief the spontaneous generation, that is the mice from the dirty cloth, corn husk, or the maggot from the rotting meats. So what are these are some superstition at the time. Okay, in 19th century many doubted spontaneous generation and discovered by Louis Pasteur. What is about the development of the cell theory. So the German botanist Matthias Selden concluded that all the plant's parts are made up of cells. After that, in 1839, the German physiologist, the Theodor Schwann, okay, who also the close friend of Selden, started that stated that all the animal tissue are composed of cell. सो पहले ही हम बता दे रहे हैं, सिल्डन और स्वान दोनों मिलके सेल थ्योरी का उद्भावन किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में, तो दोनों एक ही बात बता रहे हैं। इन 1838 वो दोनों क्या बता रहे हैं, सभी बोल रहे हैं हमारा जो सेल है, हमारा जो प्राणी कोश हो या फिर उद्भिद कोश हो, ठीक है, सभी के सभी हमारे एक पहले वाला मैंने हम सब क्या बोल रहे हैं ना, सभी के सभी हमारा सेल से तैयार मैंने सृष्टि हुआ है, ठीक है, सेल से तैयार हुआ है, ठीक है। Rudolf Virchow, the German physician, after the extensive study of the cellular pathology, concluded that cell must arise from the pre-existing cell. So after that, R. Virchow is the German physician, have extensively studied the cellular pathology. वो कोश के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो बताया है, क्या बताया है उन्होंने बताया है कि द सेल मस्ट अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल एक अपने आप ही आ नहीं सकता, वो उसको लाना पड़ता है, किसी और एक सेल के द्वारा उसको लाना पड़ता है। ये है हमारा सेल थ्योरी का मुख्य जिस्ट, जो कि हम अभी बात करने वाले हैं। देखिए ये पहला पॉइंट है उसका, ऑल दी सेल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी एक और मोर सेल से बने हुए हैं। हम नहीं बता सकते कि सभी ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल में बने हुए, सभी ऑर्गेनिज्म हमारे सेल से बने हुए हैं। वो एक सेल से हो सकता है, वो लगभग बहुत ज़्यादा सेल से हो सकता है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो सकता है। अब उसके बाद की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। देखिए जो सेल है, जो कोश है, वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसके बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारा सेल के बगैर हमारी सृष्टि का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपको इसको याद रखना है, सेल ही हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी के सभी सेल अपने आप आसमान से नहीं आ सकते, आसमान से नहीं टपक सकते, समझ में आ रहा है बात। तो वो सेल कैसे पैदा होते हैं, वो सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से रिप्लिकेशन के द्वारा पैदा होते हैं, डुप्लीकेशन के द्वारा पैदा होते हैं, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलता है, वो तो चले गए हैं, सिल्डन एंड स्वान वो दोनों बता चुके हैं बहुत ही पहले ही, ठीक है, इन 19th सेंचुरी। बट इन केस ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, व्हाट इज दैट? सो हियर द मॉडर्न सेल थ्योरी, there are some extra points are added. So what are they? So the points are, the cell contain the hereditary material, that is the information or DNA which is passed from one cell to another during cell division. So ये बात आपको याद रखना है, जो कि हमारा वंशानुक्रमिक जो कि गुणसूत्र है, जो कि डीएनए है। ओके, सो जो डीएनए है वो क्या है, वो हमारा सेल में रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और वो हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, ठीक है। और हमारा जो कि सेल डिवीजन है, उसमें हमारा एक सेल से दूसरे सेल को ये ट्रांसफर हो रहा है, इट कैन डुप्लीकेट, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन द केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर हम सभी कोषों की बात कर रहे हैं, सभी सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी सेल बेसिकली इन सेम, ओके, इन देयर केमिकल कंपोजिशन, जो कि केमिकल कंपोजिशन है जिससे वो बने हैं, वो सभी सेल के लिए लगभग सेम ही है। लेकिन जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ओके, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी सभी सेल की लगभग सेम ही है, इसको आपको याद रखना है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सभी सेल नियर अबाउट इक्वल करते हैं, सभी सेल मतलब बचने के लिए, हमारा जिंदा रहने के लिए हमें सेल को थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए, ओके, उनके जो कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे चाहिए ही चाहिए, सभी सेल को ये लगभग चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल द बेसिक
chemical and physiological function are carried out inside the cell, that is the movement and digestion. एंड अगर हम बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, जो कि केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है, ओके, जो कि हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो जैसे कि हमारा बोलते हैं हम मूवमेंट, ओके, हमारा बोलते हैं डाइजेशन, जो कि लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है हमारे बॉडी के, वो लगभग हमारे कोष में ही चलते रहते हैं इनसाइड द सेल, ओके। अगली पॉइंट के हम बात करते हैं, सेल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सेल एक्टिविटी माने सेल में जो कि काम हो रहा है वो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल। देखिए ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हम बात करते हैं वो कि जनरली सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, हमारा गल्गी बॉडी हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। वही सब सेलुलर स्ट्रक्चर हमारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या निर्धारण करते हैं, उसके ऊपर सेल की एक्टिविटी निर्भर करता है। अगर हमारा सब सेलुलर स्ट्रक्चर खराब हो गया है तो सेल की एक्टिविटी वैसे नहीं हो सकता नॉर्मली जैसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सो द सेल एक्टिविटी इज टोटल डिपेंड्स अपॉन द सब सेलुलर एक्टिविटीज, ओके, समझ में आ रहा है लगता है, ठीक है। सो चलिए हम बात करते हैं यूजेस ऑफ द सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी को यूज करके हम क्या क्या कर चुके हैं। देखिए जो कि डिजीज है, जो कि हेल्थ मेडिकल रिसर्च एंड डिफरेंट क्योर्स लाइक द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड if we do not know about the cell theory we cannot we cannot make our different medicines against the different kinds of disease, okay. So it is amazing to think that the cells make up our bodies are just live as we are. Humans are the just designated as community of the cells which must work together to survive. देखिए यहाँ पर जो बात किया गया है, जो कि सेल के बारे में बात किया गया है, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जो सेल है हमारा, वो जो हमारे बॉडी में बहुत ही सारे लाख से लाख मिलियन सेल्स है, वो सेल्स क्या कर रहे हैं, वो सेल हमारे कुछ अनदर सेल के साथ मिलते हुए काम कर रहे हैं जिससे कि हम सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा सेल किसी और के साथ टुगेदर और मिलकर काम नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, हमारा सब सेल डाई हो सकते हैं, हमारा एक्टिविटी ऐसे नहीं हो सकता जैसे हमारा अभी चल रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो सभी सेल को टुगेदरनेस से काम करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके, ठीक है। हमारा सेल, हमारा बॉडी तो एक सेल से बना नहीं है, हमारा हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे सेल को अभी क्या करना है, सभी सेल के साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। तो लगता है समझ में आ रहा है। द एवरेज ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 100 ट्रिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है इसको आपको याद रखना है अपने अगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन ये अपन मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम 9 क्लास की बात करते हैं तो इसमें ये जो सेल की मात्रा दिया गया है ये ऐसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सब याद कर सकते हैं, ठीक है। 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। सो देखिए जो हमारा सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो व्हाट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज ए यूकैरियोटिक सेल। देखिए जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक है, सुनेस्टिय और प्राक्नेस्टिय कोश हम उसको बोलते हैं, जो कि सुनेस्टिय कोश है, यूकैरियोटिक सेल कंटेन ए न्यूक्लियस एंड ए प्रोकैरियोटिक डू नॉट। देखिए यहाँ पर जो सुनेस्टिय कोश है, सुनेस्टिय मतलब यहाँ पर नेस्टी है, बहुत ही वेल डेवलप्ड नेस्टी है, न्यूक्लियस है, ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक इट डज नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ओके। फिर हम अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स आर द सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म व्हाइल यूकैरियोट्स आर कैन बी एदर सिंगल सेल और मल्टी सेल। देखिए हम अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट के बारे में, वो बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ही इट इज़ नॉट ए वेल डेवलप्ड सेल, ओके, इट इज़ नॉट ए वेल डेवलप्ड सेल, मतलब ये एक ही सेल से बना हुआ है, इसका सभी कार्य वही एक ही सेल में होता है, ओके। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और इसमें बहुत ज़्यादा ही सेल की परिमाण देखा गया है, लगभग हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। और हम अगर बात करते हैं एक कोशिकीय और सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके। हम नहीं बोल सकते सभी यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर, बट वी कैन से all the prokaryotes are single cell, okay, but eukaryotes are it may be single cell, it may be multicellular, okay। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, देखिए प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोट इज द सिंगल सेल दैट लैक्स द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस
and membrane bound organelle also. Okay, we can say the prokaryotic cell does not have your membrane bound organelles. Okay, what are the membrane bound organelle? It is the nucleus, it is the mitochondria, it is the Golgi bodies, and different kinds. Okay, but we can say in case of the bacteria it is also a prokaryotic cell, but the cell division mainly occurs by the binary fission. Okay, बाइनरी फिजन से ही इसका सेल डिवीजन होता है। लेकिन हम अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखिए जो बहुत ही माने बहुत ही एंसेस्टर हम बोल सकते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल का एंसेस्टर है प्रोकैरियोटिक सेल, माने बहुत ही पहले आ चुका है हमारे अर्थ में। अगर हम बात करते हैं इट इज़ द सिंपलर एंड वेरी स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक, तो हम बात करते हैं इट इज़ वेरी सिंपलर, मतलब ये बहुत ही सरल है, इसका कोई मैंने यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखा गया है। ठीक है, बहुत ही सीधा साधा सेल है बच्चा जैसा। ठीक है, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर हम बात करते हैं ये जो बैक्टीरिया सेल आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ही मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक अनडिफाइंड एक सम डीएनए मटेरियल्स आर प्रेजेंट। ओके, or nucleoid, we cannot say it is a DNA material, we can say it is a nucleoid. Okay, and some ribosomes are present for the protein synthesis, and we can say here also here is a cell wall present, the plasmid present. Plasmid is the external your genetic material. Okay, some sex pillage are present, and plasma membrane, and other thing is some flagellum and cytoplasm is present. So this is a general idea about the prokaryotic cell. These are the general components of the prokaryotic cell. Okay, after that we will discuss about the eukaryotic cell. What is that? यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा है? यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल लाइक दी इन द साइटोप्लाज्म ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एनक्लोजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है, याद रखना है, यहाँ पर सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। ठीक है, ये सब बात आपको याद रखना है। उसके हम अगर बात करते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में, जो कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगी है, प्रोटोजोआ, algae. ओके, सो वी कैन से एक्सेप्ट बैक्टीरिया ऑल आर द यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, गॉट इट? So here is the cells are larger than the typical prokaryotic cell. You can say the prokaryotic cell are smaller than the eukaryotic cell. Okay, and it can say the prokaryotic cell are very much we can say the ancestral cells. Okay, general idea. So we are now going to discuss about the what is the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell, what is the best example, what are their different features. Okay, so the example is we can say the bacteria is the prokaryotic cell, here you can say the eukaryotic cell algae, fungi, protozoa and animals. हम अगर साइज की बात करते हैं, इसके साइज देखिए 1 से 2 और 1 से 4 माइक्रोन हो सकता है, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यहाँ पर देखिए 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो सकता है इसके विड्थ और डायमीटर। ओके, अगर हम बात करते हैं जेनेटिक सिस्टम के बारे में, देखिए जेनेटिक सिस्टम यहाँ पर न्यूक्लियोइड है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। बात को याद रखना है। क्रोमाटिन बॉडी है, न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा थोड़ा मौजूद है। लेकिन हम अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सभी के सभी मौजूद है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस कैसा है। यहाँ पर देखिए नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अगर यूकैरियोटिक बॉडी, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सब मौजूद है। ठीक है, क्रोमोसोम डज नॉट कंटेन द हिस्टोन, नो माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर क्रोमोसोम ठीक से नहीं है। ओके, क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन से मिले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम अगर बात करते हैं सूनोस्टियोकोस और यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम हैविंग द हिस्टोन एंड माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर एक बहुत ज़्यादा कंडेंस स्टेट में रहता है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, मगर हमारा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक फीचर क्या क्या प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या क्या एब्सेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, गोल्गी बॉडी एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है, सभी के सभी एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अपोजिटली, इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल यू कैन फाइंड ऑल ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन द यूकैरियोटिक सेल।
अगर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, यहाँ पर 70s राइबोसोम पाया गया है। कहाँ पर? यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर इसकी सब 2 यूनिट के बारे में बात करते हैं, 2 सब यूनिट है यहाँ पर 70s के। कौन कौन? एक है 50s, एक है 30s। ओके, इसको आपको याद रखना है। इसको मिलाकर हम 80s हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 70s का सब यूनिट इसको याद रखना है, 50s प्लस 30s। तो यहाँ का लार्जर सब यूनिट है 50s और स्मॉलर सब यूनिट है 30s। ओके, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर 80s राइबोसोम देखा गया है। ये थोड़ा एडवांस स्टेट ऑफ राइबोसोम है। ओके, यहाँ पर दोनों सब यूनिट की बात हम करते हैं। अगर यहाँ पर 60s एंड 40s राइबोसोम सब यूनिट देखा गया है, राइबोसोमल सब यूनिट देखा। यहाँ पर 60s इज द लार्जर सब यूनिट एंड 40s इज द स्मॉलर वन। ओके, आफ्टर दैट हम अगर बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, देखिए यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन एक म्यूरिन और एक म्यूकोपेप्टाइड, एक वन काइंड ऑफ ए वी कैन से द ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, इट इज प्रेजेंट ऑन द it can made the cell wall of the prokaryotic cells. Okay, but here in case of eukaryotic cell it is absent. Okay, the peptidoglycan layer is absent in case of eukaryotic cell. अगर हम बात करते हैं स्यूडोपोडिया के बारे में, स्यूडोपोडिया देखिए यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी स्यूडोपोडिया नहीं दिखाई देगा। हमारा एमोइबा जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में हम गिनते हैं। ओके, वी कैन से द स्यूडोपोडिया इन प्रेजेंट इन सम केस ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है बच्चों। और आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे। तो अगर आपको ठीक से समझ में आया है और कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। ठीक है, वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। और हमारे चैनल को मुझे और अपने जो कि फ्रेंड्स को मोटिवेटेड करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।